और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है निखिल ने और वीडियो का टाइटल है ऑरोविले ट्रैवल इन 2021 एन एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें राधिका के चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। This video is shot using the help of JBL commercial lavalier mic. ये मजे का है ना। हाँ, जबरदस्त। Good morning, ladies and gentlemen. I am in one of the most unique places known as the experimental town for human unity, unending education and creativity. Welcome to Auroville. So once you will come here, you will find such hippie cloth shopping centers and cafes. But Auroville is much more than that. I know you guys are confused, but first let me explain that what I mean when I say it is an experimental town. So Auroville wants to remove human foundations like races, titles, position. In fact, they want to create equal opportunity for all the human beings, be it a teacher, carpenter, painter, which means everyone will be paid equally. There will be no religion, racism. They believe in sustainable living and respecting nature more than anything else. Mostly support local, go local, live for humanity and not harm the environment. It's different. It's completely different, the lifestyle and whatever it is. So this place was actually a vision of the mother Meera Alfasa and Sri Aurobindo, who wanted to create equal opportunities and such a place where all the nationalities can live together without any races, without any differences. So in 1968 at inauguration, representatives from 124 countries and 23 Indian states came together, which led to this place known as Auroville. This is the area to walk on, जहाँ पे विजिटिंग पॉइंट की ओर जाते हैं मातृ मंदिर के ओर। So in Auroville, basically आपको सिर्फ Indians देखने को नहीं मिलेंगे. There are some 59 nationalities, 2600 adults, 672 children, and it is such a beautiful sight to see that so many people are living together, staying together, celebrating together. मतलब वो यहाँ पर ही है। And one of the things that really inspired me was the youth fair, because over there was this fest where everyone came together, was singing, making pizza, dancing together. It was just amazing. मतलब अपनी एक दुनिया है। So guys, it is hard to imagine कि एक टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ बैरन लैंड था, और अब इसी टाइम पे इतनी ज्यादा ग्रीनरी है. So people, जो अभी आपने ऑडियो सुनी है और अभी जो सुन रहे हो, वो JBL कमर्शियल बैटरी पावर्ड लैवेलियर माइक से है, जो कंपैटिबल है स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, मोस्ट DSLR कैमराज एंड मिक्सर एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ इट्स 3.5 mm TRRS jack. So as you can see, this mic is omnidirectional. मैं 360 डिग्री घुमा रही हूँ और ऑडियो क्वालिटी still the same है. So for omnidirectional, let's test one more thing. मैं अभी माइक यहाँ पे अटैच कर रही हूँ अपने DSLR कैमरा के. So this is how the audio is like अगर मैं फ्रंट फेसिंग बात कर रही हूँ, और अभी अगर मैं 90 डिग्रीज मूव करूंगी तो अभी भी ये माइक ऑडियो पिक कर पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज omnidirectional feature. And it comes with a carry pouch जिसमें आप अपना JBL का माइक रख सकते हो. This is available exclusively on JBL commercial brand store on Amazon for rupees 999. So JBL commercial has helped me a lot in creating travel vlogs. So you guys stay tuned for more JBL products which offer legendary epic JBL sound. अब मैं दोबारा जा रही हूँ Auroville और मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं. रोड कितना अच्छा है। So I don't know where we are. We are in a very, very secluded area in Auroville, and the roads have suddenly become super narrow and super bad, and there is just sand, and it's scary to ride because scooty can slip anytime. But we are going to a very interesting place. So let's see how it is like. I'll reach there and I'll let you know about it. My name is Chitra. I am from Kottakarai. Okay. And you have been working here for how long?
15 years working here. Here Alas we making say recycling work, zero waste policy. So this is what paper? The newspaper. This is Hindu newspaper. Newspaper Here hai. 20 ladies here working. Then now it's a corona time is here, order is here less. That's why it's a rotation is here, 5 ladies, 6 ladies working Wow. every day. So you see this earrings. Yeah. Actually, this is made out of the bottleneck. Is a PET bottle Oh wow. that has become This DVDs. Oh wow. We are recycling that. Oh, DVDs This हैं. DVDs. हाँ सब recycled Are you an Aurovilian? Yes, I'm an Aurovilian. So, yeah. Since how long have you been here? I came in 1997, so I've been 24 years here. Oh, wow. Yeah. And you're from where? From Australia. Australia. I was really inspired by the dream of Auroville, and I felt very at home here when I first visited, and it just was everything I'd been kind of dreaming about. Okay. I felt it was a really beautiful place with an incredible vision of human unity and sustainability, and really trying to create a new way of living. Regarding sustainability as well, can you explain Yeah. how this started and what you're doing here exactly? Sure. So we do cloth pads, cloth washable menstrual pads, increase the efforts towards creating a social enterprise which would build reach for the products. So not just for Auroville, but to see if we could create income generating opportunities for rural women, and offer India an option of a sustainable non-polluting menstrual product. 5-6 cloth pads would probably be good for a cycle. They last about 75 washes, which means pretty much up to 4 or 5 years if you look after them. And a full cycle kit which has 7 pads is about 1,500 rupees. Oh, so, nice. Yeah. These two stories inspired me so much because they are ladies, lady entrepreneur, and they are moving their life in such a beautiful way, protecting the environment and doing it in a sustainable way, which was amazing. I was very, very inspired. With more than 3,500 people staying there, आप लोगों को बहुत सारे घर भी देखने को मिलेंगे, but no one owns the property. It is owned by the community. No one actually owns that land. So this is your creativity. You have built this. Yes, this was made by my husband, I think in 1990 or so. The best part is this actually. Yeah, it's down. That is very creative. Then you can do your yoga, meditation here. It's lovely. We could see the Bay of Bengal. What? Yeah, we could a long time ago, but then with all the trees, we cannot see it anymore. You know that Auroville runs on a cashless economy system. So for the most part, what we get is a form of maintenance, which is basically fulfilling all our basic needs. And that is groceries, and if we want to contribute, for example, for a yoga class, all of that is free for Aurovillians. We have a lot of benefits. Education is free for the most part. You are given an account, and it's a virtual thing because you never really transact the way you would in a normal bank. And so with this account, your maintenance is deposited there every month. You can go to Portus, you can go to Tanto, you can go to visitor center, get whatever you need, and it is debited from that account. yeah. But Auroville also has a grocery system where it is you don't even need to spend out of your account for every shopping trip. You give a minimum contribution every month, and then you take what you need. In my view, human unity is exactly this, that people from different cultures and races are coming together here, and we are able to live together. I think that's beautiful. So my husband is French, I'm from North India, and we have 2 lovely boys. So in our family we have English, French, Hindi and Tamil. तो अभी हम एक यूथ सेंटर आए हैं. यहाँ पे इस यूथ सेंटर में बहुत ही क्रिएटिवली हाउसेस बिल्ड किए गए हैं, सिर्फ वुड से और ट्रीज से. So over here people come and practice art. They want to grow vocationally and they let their creativity flow in free form. So यहाँ पे whatever they are thinking, they draw, they paint, they build creative houses, and it is like a world in another world. You are good too. ये इंटरेस्टिंग मुश्किल भी है उस साइड पे जाना इस तरह.
biggest seesaw ever. This is a seesaw version of. वाओ, ये बीच की तो एक्टिविटी है ऑरोविल ना। जब स्टार्ट हो रहा था तो बहुत सारे नेशनैलिटीज से बसेस में बैठ के लोग आए थे. वन ऑफ द बस ये है, अब ऑफ कोर्स आर्ट बन चुका है, ये क्रिएटिव स्टफ बन चुका है, बट ऐसी बसेस में लोग आए थे. दिस इज सच अ कलरफुल वन. So right now we are in Tantos Beach. ये ऑरोविल के बहुत ज़्यादा पास है और पीछे बीच क्लीन अप हो रहा है और सनसेट बहुत सुंदर हो रहा है. बट मुझे खुशी नहीं हो रही सनसेट को देखते हुए क्योंकि इतना ज़्यादा प्लास्टिक है. ये लोग 4 बजे से लगे हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:30-1 घंटा हो चुका है और अभी तक प्लास्टिक उठा रहे हैं. एंड आई थिंक दीज गाइज विल लेट यू नो बेटर द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द मरीन लाइफ. So I just learned that thermocol, when it gets wet, it becomes into smaller particles, and marine life tend to think it's fish eggs, so they end up eating it and instantly die. You see this plastic over here? Yeah. It's so thin. It's so thin. It might break into millions and millions of micro pieces. We call it microplastic, which are less than 5 mm in length. It ends up in the ocean again, ingested by the fishes, and then it comes to humans. It's a cycle. So recently there was a study where we found microplastic even in the placenta of a mother's womb. If that doesn't scare you, I don't know what would. So real ऑरोविल can only be explored with a local. और जब आप अंदर जाते हो मेन स्ट्रीट्स में, which you can only go with the help of a local, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि people are doing so much. Some are doing organic farming, some are researching about cashless economy, some people are in village development, they believe in handicraft and small scale industries, healthcare, education. We took part in music therapy. There was also a potter's market where everyone was showing their art and talent. And then we also have like other extracurricular subjects like ATB. It's not really a subject, but like you learn about your body, like how it works. You have to like meditate and then like feel your body, like your senses. After school, everybody should go to like a extracurricular sports activity. We don't have exams, we have like tests to like see if you can pass to the next grade or not. It's just to see what you have, like what are you good in and what you're not so great in. So if you are not so great in one particular subject, let's say maybe science, then what happens? Do you go to the next class, next level, or? No, you still go to the next class. It's just that the teacher helps you more in that subject. Isn't ऑरोविल awesome? All I want to say is don't come to ऑरोविल just thinking it's some tourism hub, but try to understand how these people are living so differently in such a unique way. For me, being in Oroville is more than just a lifestyle. I mean, it's a place that I feel deeply at home and has a meaning around, you know, really creating an experiment for a whole different way of living. And I think it's a really important experiment, very much needed in our global situation right now. Try to impart all of this into your life: unending education and constant progress, creativity from anywhere, from any part of the world. Until then, I'll see you guys in the next video. Hope you liked it. Baki, like, share, comment, subscribe for the algorithm. Bye bye. Take care. बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो ये वीडियो जो है एक सिंपल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है. वेल मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा. यानी कि हर दिन एक नई चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, बट ये तो टोटली डिफरेंट चीज ही. यानी कि हम लोग जो अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से निकल कर किस तरीके से हम एक सिंपल लाइफ गुजार सकते हैं, हम कैसे उसको आसान बना सकते हैं. मुझे लगता है कि ये सब इन सब लोगों ने वो एक एग्जाम्पल सेट किया है. मैं अगर बात करूँ ना, तो जैसे इस वीडियो में जिस तरह सारी चीजें चल रही हैं, एक मैनेजमेंट जो है वो चीजों को जिस तरह लेकर चल रही है, एक कैशलेस सिस्टम अगर आप देखें तो वही है. चीजों को जिस तरह रिसाइकल किया जा रहा है. अमूमन हम न्यूज़पेपर की बात करूंगा मैं सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो पता ही नहीं चला था कि वो जो चीज बना रही थी वो न्यूज़पेपर की थी. वो मुझे शायद लगा था कि ऐसे हो गई, वो एक होती है ना जड़ होती है, तो उसे हाँ बिल्कुल 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 छाबी
पंजाबी जैसी बनती है, रोटी रखते हैं, बिल्कुल, तो हम लोगों को लग रहा था पहले वो है। हाँ। लेकिन उसे यानी कि न्यूज़पेपर को जिस तरह रिसाइकल किया गया है और जिस तरह से यूज किया गया वाकई बहुत ज्यादा यूनिक है। वहां पे अगर आइडियाज देखें माइंड ब्लोइंग। वेल सिर्फ मैं इसकी बात ही करूंगी, अगर हम लोग डेकोरेशन पीस की बात करें जो कि बॉटल्स के साथ बनाए गए, फिर जो ज्वेलरी बनाई गई, सारे ही बहुत कमाल के थे। और कैशलेस की अगर हम बात करेंगे, किस तरीके से वहां पर कैश नहीं यूज किया जाता और एक तरीके के साथ आपको मतलब हर महीने आप मंथली कुछ ना कुछ पे करते हैं और उसके बाद आप कुछ भी जाकर वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगी कि एक वो ना टेंशन फ्री चीजें रखी हुई है, आपको नेचर के बहुत करीब जब आप इंसान रहता है तो काफी वो रिलैक्स फील करता है। अगर देखा जाए तो वहां पर हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हम लोगों को नजर आई। फिर जैसे समंदर के किनारे उन लोगों ने उसकी साफ सफाई की, तो बेसिकली मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया। मैं अगर लोगों की बात करूँ ना, हमने जितने भी लोग देखे वहां पर जिनके उन्होंने इंटरव्यू लिए, जैसे हम शहरी जिंदगी में अपने दोस्त यारों को देखते हैं ना, उनके चेहरे पे एक टेंशन होती है किसी ना किसी चीज की, उनके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं थी, एक रिलैक्सेशन थी उनके चेहरे पर। उन्हें वहां पे जो एक सुकून था, एक जो जिंदगी गुजारने का आनंद था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो ऐसा इनके साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी से खुश हैं। और बाकी जैसे बताया गया वीडियो में कि वो सारी जगह जो है यानी कि बंजर टाइप ही थी, वहां पे कुछ भी नहीं था। वहां पे अब जिस तरह हरियाली है, दरख्त है, तो इससे जाहिर होता है कि अगर इंसान चाहे तो नेचर को जो है किसी साइड पे भी यानी कि तब्दील कर सकता है। अगर उसे चाहे तो अच्छे तरीके से भी रख सकता है, अगर चाहे तो उसे जो है उजाड़ भी सकता है। दूसरी मैं समंदर की बात करूँ, समंदर पे जो सफाई कर रहे थे, नो डाउट हमने लोगों ने, हम इंसानों ने जो है बहुत ज्यादा जो है ज्यादतियां की हैं नेचर के साथ। मैं इसी तरह एक वीडियो क्लिप भी देख रहा था जिसमें मछली के पेट में से प्लास्टिक निकल आता है, तो वो बाद में फिर कहा जाता है कि ये जो है शेफ की गलती नहीं बल्कि इंसानों की गलती है कि आप प्लास्टिक फेंकते हैं, वो समंदरों में जाता है या जो नदी नालों में जाता है, तो मछलियां खाती हैं, तो वो वापस इंसानों तक ही फिर इसी तरह पहुंचता है। इसमें वीडियो में बोला बिल्कुल, मदर्स वॉम में भी पाया गया, तो ये मेरे ख्याल में मतलब बहुत हैरानकुन और हमारे लिए बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल। बट एक चीज जो इस वीडियो को देखकर मेरे जहन में आई कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं और एक बहुत ही बिजी लाइफ होती है, हमेशा एक जल्दी में रहते हैं, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए लाइफ में, हमें ये भी करना है वो भी करना है। और दूसरी साइड पर अगर हम ऐसे लोगों को देखें, ऐसी कम्युनिटी को देखें, तो ये चीज हम लोगों को भी समझ में आती है और एक लेसन मिलता है कि अगर हम चाहें तो हम चीजों को आसान भी कर सकते हैं, जिंदगी को मजीद सिंपल बनाकर बहुत सारी मुश्किलात से, बहुत सारी टेंशन खत्म हो सकती है। क्योंकि बेसिकली हम लोगों की लाइफ की टेंशन क्या होती है कि हमें अच्छा अर्न करना है, हमारा अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स आने चाहिए, किसी अच्छी पोस्ट पे हम लोगों ने लगना है, अच्छा घर होना चाहिए। मतलब बेसिकली हम लोगों का यही एक, मेरा ख्याल में हमारी जो जिंदगी है ना, इन्हीं चीजों के अराउंड घूमती रहती है और हम लोग को ये नहीं पता होता कि हम असल में चाहते क्या है। मतलब अब यहाँ पर मुझे जिंदगी ना मिले दोबारा कि वो एक सीन याद आया, ऋतिक रोशन सर का कैरेक्टर याद आ गया, जिस तरीके से वो भी भागते रहते हैं अपनी जॉब के पीछे और किसी चीज का उनको ख्याल नहीं रहता। तो लाइफ में हमें इतना ज्यादा, हम कहेंगे कि हमने इसको चेंज कर दिया हुआ है ना, कि अपने लिए हमने खुद मुश्किलात बना दी हैं। जब हम इन लोगों को देखते हैं, देखो वो दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, खुद भी एक अच्छा लाइफस्टाइल ले रहे हैं। और जैसे वहां पर एक्टिविटीज है, मुझे तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। बट एक चीज मैं अग्री करूंगी, इनिशियली मुझे लगता है हमारे जैसे लोग जब वहां पर जाकर रहना चाहेंगे, सेटल होना चाहेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है एक ऐसे माहौल में रहने की। बिल्कुल, हम जैसे लोग जो हैं वो शुरू में शायद वो कहते हैं ना थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, उस टाइप का हो, जरूर नहीं यार, नहीं होता है ना कि क्या नाम लेते हैं, एकदम से आपका जब माहौल चेंज होता है तो आपका दिमाग और दिल उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। हाँ, तो वही ना, तो वही जो बोरियत होती है ना, उसी में आपको डिसऑर्डर पैदा होते हैं। उसके बाद जब आप एक वो हमारे एक जाने वाले हैं, वो हमें कहते हैं कि आप एक काम के लिए 3 महीने या एक जगह 3 महीने रह लेना, फिर उसके बाद आपको वहां की आदत होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग के कुछ टाइम जो है दौरे पड़ेंगे, आपको जो है अजीब सा फील होगा, लेकिन कुछ अर्से बाद मेरा मानना है कि आपको वही जगह अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जब शहरी जिंदगी की तरफ जाया करेंगे ना कभी, तो आपको वो लाइफ नहीं अच्छी लगेगी। वैसे ये चीज हर मुझे लगता है जगह के लिए अप्लाई होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब हम लोग
लोग पुराने घर में रहते थे और फिर जब हम लोगों ने शिफ्ट किया, हम लोग इस घर में आए, तो हम लोग लिटरली मतलब रो रहे थे कि हम लोग मतलब दिल नहीं लग रहा यहाँ पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप यूज्ड टू हो जाते हो, दिल लग जाता है। खैर एनीवे, थैंक यू मौसम में बताने के लिए। अगर मैं मौसम को ऐसी किसी जगह पर लेकर गई और हम लोग ज्यादा दिन के लिए, तो मुझे इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी नजर आना शुरू हो जाएगी। मैं तो वैसे खैर कोशिश करूंगा कि ऐसी जगह पे जाके कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी मिल जाए जिसमें मैं अपने आप को मसरूफ रख सकूं। लेकिन हाँ, अगर मैं वहां पे जाके 24 घंटे घर के अंदर बंद रहूंगा ना, फिर वाकई मुझे डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे। नहीं बंद रह सकते, मुझे पता है घर में तो यहाँ पर नहीं बंद रह सकता। इसको बहुत ज्यादा आदत है, वो जो कि अच्छी आदत मुझे लगता है कि आपको एक जगह पर टिक कर बैठने की तो मुझे भी आदत नहीं है। अगर हम कहीं पर घूमने जाएं तो मेरा होता है कि बस जल्दी से घूमे 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 और चलते जाएं, नई चीज एक्सप्लोर करें। बट आज की वीडियो बहुत बहुत खास थी, बहुत मजा आया। और जिस तरीके से इसकी बुनियाद रखी गई 1968 में, जो कि वीडियो में ही बताया गया है, और मैं ये बात कहूंगी कि जिस टाइम पर इसकी बुनियाद रखी गई थी और जिन लोगों ने रखी गई, जो कि जिनका नाम था मौजम मीरा अल्फासा, जिन्होंने इनकी बुनियाद रखी थी, मैं बोलती हूँ कि कमाल की उनका एक आइडिया था, जहां पर इतनी देर पहले उन्होंने लोगों के बारे में सोचा कि जो भेदभाव है, मतलब पे स्केल और जो भी एक हम कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होता है, उन सबसे अलग एक उन्होंने एक आइडिया लेकर आई और मतलब उस चीज को बनाया। तो और हाँ, और सक्सेसफुली मतलब उसको देखे, अगर हम देखा जाए तो आज के टाइम में सक्सेसफुल भी है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए इस जगह की, तो इसका कुछ हिस्सा जो है, यानी कि ज्यादातर हिस्सा तमिलनाडु में और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पौंडीचेरी में आता है। और जिन्होंने इसे बनाया वो बेसिकली फ्रेंच नेशनल थी। और अगर उनकी बात की जाए तो 95 साल की उम्र में वो 1973 में पौंडीचेरी में उनकी डेथ हुई और उनकी रेस्टिंग प्लेस भी वहीं पर है। मैं यहाँ कहूंगी कि जब हम पौंडीचेरी भी हम लोगों ने देखा था उस टाइम पर, मतलब वो भी बहुत हम लोगों को डिफरेंट और खूबसूरत और शांत वाकई में लगा था। और आज ये देखा तो एक डिफरेंट साइड हम लोगों ने देखी है। लेकिन एक चीज सीरियसली जैसे जैसे हम लोग वीडियोस देखते जा रहे हैं, मानने को है कि इंडिया में बहुत कुछ है, बिल्कुल बहुत कुछ ऐसा मुझे लगता है कि शायद जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ, बट बहुत खूबसूरत और बहुत कुछ है। और ये वीडियो आज उसी की एक मैं कहूँगी मिसाल है। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप में से किस किस को पता था और ऑरोविल के बारे में, ऑरोविल के बारे में, है ना, ऑरोविल, ठीक है, सही नाम ले लिया, ऑरोविल के बारे में जरूर बताइएगा। और किस किस ने विजिट किया है ये भी बताइएगा। और थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए। और इसी के साथ हमें ज्यादा वीडियो से लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।